Hello, dear. Very good evening to everyone. Today we'll take a look on the salient feature of the Indian Constitution. This is a very important topic because you have noticed that in a many competitive examination, it very commonly asks a question like which of the following are the feature of the Indian Constitution, or sometimes it may come in a opposite way like which of the following are the not a feature of the Indian Constitution, or sometimes may it ask in a form of like a unitary form and like somewhere in a federal form and in a parliamentary system and in a presidential system that we will take a look on later, but these are the very important for right now to learn about the salient feature of the constitution. So we'll take in a detail. Okay, so be with me. So first we will start from the this basic. See here basic as given the, like we have seen in an earlier lecture that the Indian constitution comprise many of the article like around 400 plus it already in a 395 during the enforcement of the constitution. But as you know that the constitution comprise amendment provision which give a parliament power to amend a constitution under part 20 of the constitution under article 368, which you have know that there are two types of amendment. Exactly we have a three type of amendment, but the one which is a simple majority through which the constitution amend is not called as the constitutional amendment, but the whatever called as a constitution amendment is come under the article 6, and under article 368 we have a two type of constitutional amendment. Okay, like I am also writing here so you'll get easily understand. Okay, so like article 368. Now I'll tell you later on what are the two types of under this. Okay, but in brief we will take a look right now. Like in brief what happened in first type of amendment under article 368, it's called as a special majority. Special majority means the 2 by 3 member present and voting. Okay, and in a second type it also say similar like uh, amendment 1, but there are certain modification. Like here is a special majority plus half of the state with a simple majority. Okay, like in a one type of amendment example like you may consider at fundamental right DPSP, and in a type 2 you may consider as a power of president, Supreme Court, election system, etc, etc. Okay, so now we will take a look here. hmm. The Indian Constitution is unique and split. अभी यहाँ पे देखोगे आप तो क्या हो जाता है, ये कुछ कुछ जो आर्टिकल्स है ना they are very important. Okay guys, these are a very important article if you notice, like constitutional amendment 7, 42, 44, 73, 74, 97, 101. To discuss this constitutional amendment, we will take a one separate lecture on that. We will take a look. So right now we are moving directly towards the features of the constitution. Okay, here you may also notice article 368. So now the salient feature of the constitution. So here first we will take a look of the lengthiest and written constitution. What is mean by that lengthiest and written constitution? Lengthiest constitution, like sometime called Indian constitution as a elephant size constitution. By what? Like see here, because in a Indian constitution comprise 22 parts, 8 schedule and 395 article, but these were during the enforcement of constitution in 26 January 1950, but right now we live in a 21st to 2021st year.
So up to 2090, they improvise. See the article improvisation from 395 to 470, and the part comprise 25 and 12 schedule. अभी इतने सारे आर्टिकल्स, शेड्यूल, पार्ट्स आप दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखोगे. इवन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, बट वहाँ पे भी आपको इतने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं दिखेंगे. इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? लेंदियस एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अभी लेंदियस का मतलब तो आपको समझ गया रहेगा कि लेंदियस क्या होता है. ओके, अब रिटन का हम लोग देखते हैं. अभी रिटन का मतलब क्या हो जाता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी देखेंगे हम तो क्या हो जाता है कि दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन हो जाते हैं. एक रिटन हो जाता है लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, एंड एक होता है अनरिटन लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. अभी यहाँ पे क्या है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और अनरिटन है उसमें डिफरेंस क्या हो जाता है. तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर हम देखेंगे तो क्या है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो भी है प्रॉपरली सिस्टमैटिक लिखा मिलेगा, लाइक आर्टिकल्स, शेड्यूल, पार्ट्स, अमेंडमेंट कैसा करना है, ए टू जेड पूरा. लाइक जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो कि लाइक आपका फेयर बुक ले लो. जो आपका फेयर बुक रहता है, आप देखिए उसमें जो भी आप नोट्स बनाते हैं, जो भी वहाँ पे ऐड करते हैं प्रॉपरली सिस्टमैटिकली. ये नहीं कि चैप्टर 1 का चैप्टर 5 में ऐड कर दिया, 7 का 4 में ऐड कर दिया. अगर वहाँ पे कोई इम्प्रोवाइजेशन भी होता है तो आप वही पर्टिकुलर चैप्टर में, वही पर्टिकुलर कॉलम में, पॉइंट में ऐड करते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक वे में. तो वही कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रॉपरली सिस्टमैटिक लिखा हुआ है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में है, उसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. एग्जाम्पल यू मे से हियर अमेरिका एंड इंडिया, एंड देयर आर मेनी कंट्री. ओके, नाउ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अभी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या हो जाता है? लाइक रफ बुक. टेक एग्जाम्पल लाइक रफ बुक. रफ बुक में क्या होता है? जब जो मन में आया लिख दो. लाइक हिस्ट्री का लेक्चर है तो भी उस सेम बुक में लिखना है, रफ बुक में लिखना है. पॉलिटिकल लेक्चर हो, इकोनॉमी का लेक्चर हो, ज्योग्राफी का हो, करंट अफेयर का हो, सब का सब हम एक ही बुक में लिख देते हैं. एंड उसमें भी हम कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं, राइट ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. एग्जाम्पल लाइक ब्रिटिश, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है. लाइक यहाँ पे आप इसका भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, इज़राइल, एंड बहुत सारे अलग कंट्रियाँ हैं जिनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. बट उतना ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा पता होना चाहिए, और एक दो एग्जाम्पल रह गया तो अच्छी बात है. ओके, अब हम आगे देखते हैं. आई होप अभी मेन एक क्रक्स यही है पॉइंट का. अभी हम दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा क्या बोल रहा है फीचर. ओके, जो दूसरा ड्रॉन फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन और समटाइम इट कॉल्ड एज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो हमने फॉरेन कंट्री से लिया है. एग्जाम्पल यहीं पे ले लो, सिटीजनशिप, बिकॉज अभी न्यूज़ में चल रहा है, आप अच्छे से जानते रहोगे उसके बारे में. CAA, राइट ना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्या है कि वो भी हमने कहाँ से बोरो किया है? सिंगल सिटीजनशिप, तो हमने यूके से बोरो किया है. तो वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? एक फीचर्स है. अभी हम यहाँ पे देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वेरियस अदर कंट्री एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक हमने बहुत सारी अलग अलग कंट्री से तो लिया गया है, बट साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ इम्पॉर्टेंट 1935. बिकॉज क्या है, ये सारे एक्ट जो हैं ब्रिटिश कॉलोनी के थ्रू लाए गए थे जब वो हम पे राज करते थे. तो उसमें जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, इसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जो हमने लिए, लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर. ओके, एंड बहुत सारे ऐसे अलग प्रोविजन हैं. तो अभी यहाँ पे BR अम्बेडकर देखिए क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अ शेम, राइट ना, कि हमने बाहर वालों से कंट्री से बोरो किया है. BR अम्बेडकर प्राउडली claim that the Constitution of India has been framed after a ransacking
ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स हमने सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई किया है, अमलगमेट किया है, शाइन किया है, एंड जो उसमें से काफ़ी वैल्यूएबल, प्रीशियस, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस है वो हमने अडॉप्ट किया है, विच सूट एज पर द नेचर ऑफ द इंडियन पीपल्स। ओके, सो अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स दिखेंगे जो हमने बोरो किया है। तब यहाँ पे देखिए आपको कुछ देखेंगे हम यहाँ पे, तो क्या है कि हमने फंडामेंटल राइट बोरो किया हुआ है, फंडामेंटल राइट बोरो किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरो किया गया है। फिर ये हमने कहाँ से बोरो किया, अमेरिका से बोरो किया फंडामेंटल राइट, और इस कॉन्स्टिट्यूशन हमने बोरो किया। ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिए गए रहेंगे। दिस अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यू शुड नो। लाइक यहाँ पे जर्मनी दिया, जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट लिया है। ऑस्ट्रेलिया से भी हमने बहुत सारे प्रोविजन लिया है, लाइक जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। कनाडा से हमने क्या लिया है, तो फेडरल सिस्टम लिया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजन जो है हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से बोरो किया है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कीप इन माइंड वाइल अपियरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कि हमने कौन सा प्रोविजन कहाँ से लिया। जनरली ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट वी विल टेक, ये देखिए आपको लगता रहेगा कि मैं वन बाय वन वर्ड रीड नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए अगर मैं वन बाय वन वर्ड रीड करूँगा तो दैट्स नॉट अ गुड ना, वो तो आप भी रीड कर सकते हो। माई मेन इंटेंशन टू एक्सप्लेन यू इन अ फैमिलियर वे, सो आपको ये ध्यान में रह जाए। दूसरा क्या है, ब्लेंडिंग विथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अभी इसका मतलब क्या हो जाता है, ब्लेंडिंग विथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अभी जैसे मैंने आपको बताया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि परपेचुअल इन नेचर है कि उसको कभी अमेंड नहीं किया जा सकता, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, बिकॉज वी आर द लिविंग एंटिटी। और टाइम क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके नीड के हिसाब से क्या होना चाहिए, हमें चीज़ों को अडॉप्ट करने आना चाहिए। एंड उसी हिसाब से हमने क्या किया है, हमने उसके लिए आर्टिकल 368 ऐड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, which comprise two type of amendment which empower the parliament to amend the constitution. Okay, अब वो तब भी अमेंड करेंगे जब भी रिक्वायरमेंट होगा। राइट नाउ टेक एग्जांपल ऑफ लाइक जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है, इनिशियली इट वाज नॉट नेसेसरी कि राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए, बट लुक राइट नाउ राइट टू प्राइवेसी इज आर फंडामेंटल राइट। राइट टू इंटरनेट एक्सेस, आपने सोचा था 50 साल पहले राइट टू इंटरनेट एक्सेस करके कोई राइट हो सकता है, बट आज है, आर्टिकल 19 में आता है हमारे स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। लाइक आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, कुछ बोलना है, इंटरनेट की सहायता लेके, सोशल मीडिया का हेल्प लेके आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, अपनी मन की बातें बोल सकते हो, आप जान सकते हो। तो वो क्या है, आज के दिन में आपका फंडामेंटल राइट है। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने इनिशियली आपको 2 पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि कैसे अमेंड होते हैं, मतलब कौन से 2 टाइप है, वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं आगे यहाँ पे डिटेल में नहीं जानता हूँ। ओके, हाँ ये थोड़ा रह गया बताना रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के वर्ड के बारे में। अभी रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में क्या हो जाता है कि ब्लेंडिंग विथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब, अभी रिजिडिटी मतलब क्या हो जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना इजी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि उसका जो सर्टेन पार्ट है बहुत ही रिजिड है, उसको हम इजीली अमेंड नहीं कर सकते, which require a very much effort, which require a certain procedure need to be followed with a consensus. Okay, so like कि अगर ऐसे कुछ प्रोविजन है जिनको अमेंड करना है तो उनके लिए स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड रहती है, लाइक अंडर आर्टिकल 368। ओके, सो वो क्या है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी रिजिड है। लाइक टेक एग्जांपल ऑफ यूएस, यूएस में कुछ भी अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ भी मॉडिफाई करना है तो क्या होता है, वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या हो जाता है, वहाँ पे जो भी मेंबर हैं हाउस के वो 3/4 प्रेजेंट रहने चाहिए एंड वोट करने चाहिए।
दैट इज अ स्पेशल मेजॉरिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ यूएसए। एंड वैसा ही हमने भी बोरो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, विच रिक्वायर 2/3 मेजॉरिटी, ओके, इन अ कंटेक्स्ट ऑफ रीजन। अब पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, राइट ना? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब राज्यसभा में, लोकसभा में अगर मेंबर देखोगे तो यहाँ पे कितने हुए हैं प्रेजेंटली? 543। और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 245, ओके। तो अभी यहाँ पे जो भी ये मेंबर है वो 2/3 प्रेजेंट रहने चाहिए एंड साथ ही साथ वो वोट भी करने चाहिए, ओके। देन इट विल कॉल्ड एज अ स्पेशल मेजॉरिटी। बट उसी के साथ साथ में कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जैसे कि उनको अमेंड करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ओके। उसके लिए कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल एंड प्रोसीजर फॉलो नहीं करता है। लाइक फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप अमेंड करना है, लोकसभा में रेजोल्यूशन लाओ, राज्यसभा में लाओ, उसको सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया जाता है। अभी सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या हो जाता है? द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग which does not require any specific criteria to be present and to be voted, okay. So now the example for a flexible constitution, uk have a flexible constitution, like uk में कुछ भी अमेंड करना है, कुछ भी मॉडिफाई करना है, आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, इजीली अमेंड कर सकते हैं, वेयर डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन एंड फॉर्मेलिटी। सिमिलरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा ही, लाइक आप बोल सकते हैं पार्शली इज अ फ्लेक्सिबल एंड पार्शली इज अ रिजिड, तो यहाँ पे इसलिए वो ब्लेंडिंग वर्ड दिया गया है, अंडरस्टैंड, ओके। सो नाउ विल मूव फॉरवर्ड। नाउ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। अभी ये क्या होता है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस? लाइक हम बोलते हैं इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, लाइक हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले बोरोड फीचर्स में कि फेडरल सिस्टम हमने बोरो किया है। कहाँ से बोरो किया है? यस, हमने ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, कनाडा से बोरो किया है। बट साथ ही साथ क्या है कि जो भी कंट्री होती है यूनियन लेवल पे, आइदर दे आर अ फेडरल कंट्री और यूनिटरी कंट्री। बट हमारे कंट्री में क्या है, ये दोनों के फीचर्स है, फेडरल के फीचर्स भी है, यूनिटरी के भी फीचर्स है। अब मैं फेडरल के बारे में थोड़ा आपको दो लाइन में बता देता हूँ। जब भी फेडरल के बारे में वर्ड आए कि व्हाट इज अ फेडरल, तो सिंपली आपने ध्यान में रखना है डिवीजन ऑफ पावर between layer of government, that is union government or state government as per the constitution, ओके, क्लियर हो रहा है। एन यूनिटरी बायस, एन यूनिटरी कंट्री मतलब क्या हो जाता है कि ऑल पावर are vested with the union government, there is nothing layer of government like state government, local government, example UK, France, China, जापान एक्सेट्रा, ओके। अभी यहाँ पे क्या है, हमारे कंट्री में फेडरल फीचर्स भी हैं एंड यूनिटरी फीचर्स भी हैं। अगर हम कोई देखेंगे कि कोई कंट्री परफेक्टली फेडरल है या नहीं है, सो वी हैव अ एग्जांपल राइट नाउ। द यूएस इज अ वेरी मच फेडरल कंट्री वेयर कंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ओके। वहाँ पे कंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बट द कंट्री लाइक यूके, चाइना एक्सेट्रा, वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर नहीं है,
they give a certain power to the local body for the assistance of administrative activity, but it's not constitutional obligatory. There's no any constitutional provision for the sharing of power in a matter of unitary government. Okay, so अभी इंडिया में क्या है, सी इन अ नॉर्मल टर्म इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. क्या हो जाता है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. एंड यहाँ पे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करता है, यूनियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करता है, बिकॉज वी हैव डिवीजन ऑफ पावर. ओके, तो यहाँ पे अपने अपने प्रोविजन के हिसाब से काम कर रहा है. और ये डिवीजन ऑफ पावर कहाँ पे दिया है, तो देखिए हमने देखा था 7 शेड्यूल, जहाँ पे कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल है. तो इसी का जो 7th शेड्यूल है वो बात करता है डिवीजन ऑफ पावर के बारे में, जिसमें यूनियन लिस्ट दिया गया है, स्टेट लिस्ट दिया गया है एंड कॉन्करेंट लिस्ट दिया गया है. अब यूनियन लिस्ट ऐसा है जिस पे कौन लॉ बनाएगा, ऑब्वियसली यूनियन गवर्नमेंट, राइट ना. एंड यहाँ पे कौन बनाएगा स्टेट पे, तो स्टेट गवर्नमेंट. एंड यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों बना सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में. ओके, अब एग्जांपल ले लो, यूनियन लिस्ट में क्या आ जाएंगे, लाइक डिफेंस, फॉरेन रिलेशन, ओके, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी के सभी किस में आएंगे, यूनियन लिस्ट में, बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट को ही पावर होता है इसके बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होता है. एंड स्टेट लिस्ट के बारे में हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. स्टेट लिस्ट लाइक पुलिस, लैंड, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, एंड देयर आर मेनी मोर विच कम अंडर द स्टेट लिस्ट, जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकते हैं और कोई नहीं. हालांकि यहाँ पे सर्टेन एक्सेप्शंस है, इस पे अगर यूनियन गवर्नमेंट भी चाहे तो लॉ बना सकती है, बशर्ते कि वो जो रेजोल्यूशन है या प्रपोजल है वो राज्यसभा में इनिशिएट होना चाहिए, वो भी विथ अ स्पेशल मेजॉरिटी. अगर वो प्रोसेस फॉलो कर रहा है देन उस पर वो लॉ बन सकता है. अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या हो जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट में लाइक फॉरेस्ट, ये सब्जेक्ट आ जाते हैं, एजुकेशन, एंड देयर आर मेनी अदर. ओके, लाइक मैनेजमेंट ऑफ पोर्ट्स, वो भी आ जाता है. वहाँ पे भी डिफरेंस है मेजर पोर्ट्स एंड माइनर पोर्ट्स में. ओके, तो इस हिसाब से लॉ बनाए जाते हैं. नॉर्मल टर्म पे तो कंट्री इस हिसाब से वर्क करती है, बट जब भी इमरजेंसी का टाइम होता है, अभी इमरजेंसी क्या होता है, तो जैसे अभी आपने देखा हमारे पास टोटल कितने पार्ट हैं, तो 25 पार्ट है. सो उसमें से हमारा एक पार्ट है पार्ट 17 विच डील विथ एमरजेंसी. हमारा पार्ट 17 किससे डील करता है, इमरजेंसी से डील करता है, जिसमें क्या हो जाता है कि इसमें आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आ जाता है, हाँ, और इसमें आपका नेशनल इमरजेंसी भी आ जाता है, एंड इसमें आपका स्टेट इमरजेंसी भी आ जाता है. ओके, अब ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी, अभी देखिए ये आपको आगे डिटेल में और भी पढ़ने को मिलेगा, बट मैं ये ब्रीफ में बताता हूँ. तो इसके लिए अलग से आर्टिकल्स है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, लाइक आर्टिकल 360, नेशनल इमरजेंसी के लिए 352, एंड स्टेट इमरजेंसी के लिए आपको आर्टिकल है 356. हालांकि यहाँ पे एक और भी आर्टिकल है, आर्टिकल 365, जो कि हम आगे और डिटेल में देखेंगे. ओके, अगर हमें रिक्वायरमेंट होता है, जैसे हमारा रिक्वायरमेंट होगा हम वहाँ पे देखेंगे. अभी यहाँ पे आपको इतना तो पता चलेगा, जब भी क्या होगा, स्टेट इमरजेंसी आएगा तो क्या होगा, या फिर फेडरल इमरजेंसी आएगा तो क्या होगा, या फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगा तो क्या होगा. सो वहाँ पे जो पावर रहते हैं वो ऑल पावर डायरेक्टली कम विथ यूनियन गवर्नमेंट. ओके, ऑल पावर कम विथ यूनियन गवर्नमेंट.
ऑल पावर कम विद द यूनियन गवर्नमेंट। उस टाइम पे ये शेड्यूल फॉलो नहीं होता है। तो वैसे ही हमारा कंट्री में क्या है, फेडरल सिस्टम्स भी हैं एंड यूनिटरी सिस्टम्स भी हैं। लाइक यूनिटरी सिस्टम पे क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है, वो भी हमारे यहाँ पे दिया है। इन फेडरल सिस्टम में डिवीजन ऑफ पावर होते हैं, जो कि हमारे कंट्री में दिया है, बट दिस वैरी ऑन द डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, लाइक नॉर्मल सिचुएशन एंड वॉर सिचुएशन। ओके, now we will take a look on a parliamentary form of government। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो जाता है, यहाँ पे वी हैव अ टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट। यस, one is a presidential form of government and other is a parliamentary। okay, अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक इंडिया, बांग्लादेश, जापान, यूके एंड द other type of government is a presidential like USA, France, रशिया, चाइना। ओके, सो अभी हमारा कौन सा टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही हमने क्यों लिया, बिकॉज वी, और यहाँ पे देखिए ये हमने जो फीचर्स बोरो किया हमने कहाँ से किया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से फॉलो किया है, लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। अभी हमने यही क्यों बोरो किया, बिकॉज वी वेयर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर and this system is very much experienced and tested and understand by the Indian people, so they know the merit and demerit of the parliamentary systems, so they opted this because the many of features and provisions of the parliamentary form of government suit for the India, like here we have a provision like majority party rule। ओके, मतलब जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिलेगा वही रूल करेगा। यहाँ पे क्या होगा, रियल एग्जीक्यूटिव भी होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी होता है। रियल एग्जीक्यूटिव मतलब जिसको लोग चुनते हैं, लाइक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं एंड बाद में उसी में से क्या होते हैं, मिनिस्टर्स निकलते हैं, और जिस भी पार्टी को मेजोरिटी रहती है वो सरकार बनाती है। यहाँ पे और क्या होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मतलब कुछ भी सही हो या गलत हो सिर्फ एक को जिम्मेदार नहीं दिया जाता है, यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टुवर्ड्स लेजिस्लेचर किनका रहेगा, एग्जीक्यूटिव का। साथ ही साथ क्या है, मेंबर आर द पार्ट ऑफ मिनिस्टर्स इन अ लेजिस्लेचर, लाइक मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। लाइक क्या होता है, जो अभी देखिए यहाँ पे ना पार्लियामेंट्री फीचर्स में ना हम और डिटेल में देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये अलग से पूरा डिटेल्स चैप्टर है, देखने के लिए जाएंगे तो एक्चुअल में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है वहाँ पे ये ऐसे फीचर्स नहीं होते, लाइक वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एंड जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं एंड जो जुडिशरी है, they have a complete separation to each other, but in the context of executive or legislature we have cooperative relation which help for the smooth functioning of the administrative activity. That's why we have chosen this. Okay, now we will take a other। now synthesis of फिर यहाँ पे क्या है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवर्निटी, जुडिशियल सुप्रीमेसी। अभी यहाँ पे बहुत सारे हम सब वन बाय वन देखेंगे। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज,
a secular state, universal adult franchisee, सिंगल सिटीजनशिप, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी किया था, इंडिपेंडेंट बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविजन, 3 tier of government, and cooperative societies. Here we also have some criticism. These are not very much important for a prelim perspective, but for the mains, if you take a look in it, so it's really helpful. यहाँ पे देखिए आपको कुछ पार्ट्स के डिटेल्स दिए हैं कि कौन कौन से पार्ट्स में क्या आता है। ये आपने एक बार देख के लेना है, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ये पूछे जाते हैं। और सम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हैं, आपने एक बार नज़र मार लेना है। हालांकि आर्टिकल सब नहीं पूछे जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे आर्टिकल है। फिर यहाँ पे आपको शेड्यूल के बारे में दिया हुआ है, एक बार आपने यहाँ पे देख लेना है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको हमने कौन सा फीचर्स कहाँ से बोरो किया है, उसका पूरा का पूरा डिटेल आपको दिया गया है। ओके, इसको एक बार आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। बट आपने पढ़ा तो बेनिफिट ही होगा, बिकॉज कुछ ना कुछ आपको फोल्डर पॉइंट मिल जाएगा। ओके, चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद।